My dear all, through this video we'll know about the passages. पैसेज के बारे में जानेंगे कि जो जनरल इंग्लिश में जो कंप्रीहेंशन टेस्ट होता है तो उसमें किस तरह से आप एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हो. I will say in Hindi as well as in English so that you all have to be active and watch full video. आप पूरी वीडियो को देखिए, देखने के बाद बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप पैसेज पढ़ने के बाद एमसीक्यू सोल्व करते हो और कितना वो इजीली है. Now first you all have to read the passage. चलिए यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, हम इसे पढ़ लेते हैं. The son while going on his daily rounds saw a princess and fell in love with her. Whenever he could slip away from the heavens, he would take human form and go down to the princess to spend some time with her. The princess too became quite fond of him and would wait for him to come. One day the son decided to send her a blood red ruby as a token of his love for her. He put the gem in a silk bag and calling a crow that was flying fast, now asked the bird to deliver the gem to his beloved. Crows had milky white feathers in those days, and it was considered auspicious if a crow came anywhere near you. So the son was pleased that he had found a crow to deliver the gem. As the crow sped through the sky with the silken bag, the aroma of food lured him. Looking down, and crow saw that a wedding feast was in progress. Wedding feast. No, and immediately it was distracted from its mission. Food was one thing it could never resist. आपको जब कभी भी पैसेज पढ़ना है, क्लियरली पढ़ना है, इस तरह पढ़िए. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रीड कर रहे हो. You all have to understand the sentence words. यहाँ पर मैंने सिल्क बैग लिख दिया. ओके, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है. डोंट वरी, ये बैग होगा, सिल्क बैग, राइट. नाउ फिर नेक्स्ट करते हैं. Alighting on a tree nearby, it hung the bag on a tree and went off to find some food. While the crow was feasting, a merchant passing by saw the bag on the tree. He knocked it down with a pole. When he opened the bag and saw its contents, he almost swooned in joy. Quickly pocketing the ruby, he filled the bag with dry cow dung that was lying there, and deftly returned the bag to the branch. आपको मैंने बताया कि जब रीड करते हो सेंटेंस शुड बी क्लियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आपकी इंग्लिश, आप सबकी इंग्लिश एक जैसी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग सबकी एक जैसी नहीं होती. तो आप जिस तरह से सेंटेंस को समझते हो आपको वैसे ही सेंटेंस को रीड करना है, समझना है. कॉपी मत कीजिए कि टीवी में किसी एंकर ने किस तरह बोलते हैं, कोई एक्टर किस तरह बात करते हैं, कोई इंग्लिश पर्सन, इंग्लिश मैन किस तरह बात करता है. आप उनकी कॉपी मत कीजिए, क्योंकि जब कभी भी आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज बोलते हो तो बिल्कुल डिफरेंटली बोलते हो. अगेन कंटिन्यू. It was all done so quickly that the crow missed all the action. After having its fill, it flew up to the tree and picking up the bag and took it to the person it was intended for. The princess was in the garden. When the crow gave her bag, she took it eagerly, knowing that it was from the sun. But when she saw its contents, she reeled back in shock and anger, believing that it was son's way to telling her that he did not care for her. Yet it was she flung the bag away, rushed to her palace, and never came out again. When the son learned of what had happened, he was furious. So great was his anger that when he turned his scorching gaze on the crow, its feathers were burnt black. Its feathers have been black ever since. The ruby did not stay with the man who stole it. It fell out of his pocket and rolled into a deep pit. Men have been trying to dig it out ever since. Many precious stones
have been found in the process, making Myanmar one of the richest source of rubies and sapphires. But the ruby that the sun sent to the princess is yet to be found. इस तरह से आपने पैसेज को पूरे का पूरे रीड कर लिया। माय डियर, पैसेज को केयरफुली रीड कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ये आपका पैसेज, जो पैसेज आपने पढ़ा, सेम पैसेज, वही पैसेज यहाँ स्क्रीन पर अभी भी है। ये आपका मैंने साइज बदल दिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डिड द सन सेंड फॉर द प्रिंसेस एज अ टोकन ऑफ हिज लव? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू ऑल हैव टू फाइंड आउट द आंसर। वट एवर पैराग्राफ इज गिवन, जो भी यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर सर्च करना है। ओके, नाउ देयर आर 5 ऑप्शंस। He sent her the crow, he sent her drag or dung, he sent her a red ruby, he gifted her the city of Myanmar, none of this। इसमें से आपका एक करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? इस तरह से आप बहुत इजीली समझ जाते हो, क्योंकि आपने पैसेज को रीड कर लिया कि उनको क्या भेजा गया था। सन सेंड, क्या सेंड किया था सन ने। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4th सेंटेंस ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप वहां पर देख भी सकते हैं। एंड ही सेंट हर अ रेड रूबी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इस तरह से आपने पैसेज को रीड करके क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही इजी हो जाती है, क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो छोटी सी चीज को लेकर। सेंट हर द क्रॉ, क्रॉ को भेजा या हर रेड रूबी भेजा। ओके, तो मिसिंग वहीं पर होती है ज्यादातर। नाउ सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, सेम पैसेज दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको बदल गया। Why did the princess fling the gift away? Okay, now there are 5 options. She did not like rubies, crow was taken to bring bad luck, and she had found cow dung in the bag. She thought the sun was playing a cruel joke on her. She had wanted to the sun to personally deliver it. इंग्लिश को स्टाइल में मत पढ़िए, समझिए, समझना जरूरी है। लैंग्वेज को जितना आप अच्छे समझते हो वो आपके लिए इतना ही हेल्पफुल हो जाएगा। राइट, चलिए, एंड करेक्ट ऑप्शन आपका जो इसमें से फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड पैरा में आपका 8th सेंटेंस में आपका बिल्कुल दिया हुआ है। राइट, 8th सेंटेंस की बात कर रहा हूं, पॉइंट के बाद आप काउंट करना। एंड सी नंबर इज करेक्ट, सी हैड फाउंड काउ डंग इन द बैग। ओके, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नो, दिस क्वेश्चन फॉर यू इन फ्रंट ऑफ यू, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रीशियस स्टोन्स इन म्यांमार? नाउ देयर आर 5 ऑप्शंस, यू ऑल हैव टू रीड द ऑप्शंस। Before reading all options, you do not have to select anyone. पूरे का पूरे रीड कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट रीड किया और आपने ये समझा कि यही ऑप्शन सही है तो वही में आपने उसी में टिक लगा दिया। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट यू ऑल हैव टू रीड द ऑप्शंस केयरफुली, देन यू हैव टू सेलेक्ट वन। ओके, एंड करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। Humans discovered the stones in their search for the lost ruby. ओके, एंड ये आपका सेकेंड पैरा के लास्ट सेंटेंस में लिखा है। ये मैंने आपका एक्सप्लेनेशन मोड में इसलिए दे दिया, एक्सप्लेन करके, कि आप ये देखें कि पैसेज में आखिर किस तरह से सर्च किया हुआ है। मैं करेक्ट ऑप्शन सिर्फ दे सकता था, लेकिन जब आपको आंसर ये पता चल गया ये किस सेंटेंस से लिया गया, कैसे दिया गया, तब आपको और इजी हो गया समझना कि आप किस तरह इजी से कर सकते हो पूरा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, while on its way to the princess, the crow was distracted by. There are 5 options in front of you. आप स्क्रीन पर जो ऑप्शंस है बिल्कुल आप उसको रीड करो। Without reading, you do not have to select anyone. The merchant calling out to him the wedding that was taking place below, and the ruby that the sun sent for the princess. The temptation of the smell of the food. He was crowd. क्या है करेक्ट ऑप्शन, ये आपको पहले रीड करके तभी सिलेक्ट करना है। मैं फिर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हूँ। फर्स्ट पैरा के सेकंड सेंटेंस में बिल्कुल वो रिटर्न है, और करेक्ट ऑप्शन इज डी, टेम्पटेशन ऑफ द स्मेल ऑफ फूड। ओके, इस तरह से आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया। ये आपने फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड सेंटेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डिड द सन सेंड his gift for the princess along with the crow? ओके, आपके 5 ऑप्शंस भी आपके सामने हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल आप उसे देखिए।
देखने के बाद आप उसे रीड कीजिए। मैंने जैसे बताया कि विदाउट ऑल ऑप्शंस रीडिंग आप उसे सोल्व ना करें। फर्स्ट यू ऑल हैव टू रीड द ऑल ऑप्शंस, आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट वन, बट विदाउट कंफर्मेशन यू कैन नॉट डू। आप उसे कंफर्म करो फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से बिल्कुल कंफर्म करो कि आप जो टिक लगा रहे हो वो बिल्कुल सही वही है कि नहीं। इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया और वो करेक्ट ऑप्शन सी है और वो आपका फर्स्ट पैरा के 5th सेंटेंस में मेंशन किया गया है। दैट मीन्स यू कैन से सी इज करेक्ट ऑप्शन एंड डिटेल भी मैंने आपको बताया, उसी बेस पर आपको यहाँ पर समझ भी आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉय ऑफ द मर्चेंट ऑन फाइंडिंग द रूबीज, रूबी वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों? देयर आर 4 ऑप्शंस, आपको रीड करना है। ही डिड नॉट सक्सीड इन स्टीलिंग द रूबी, रूबी फेल आउट ऑफ हिज पॉकेट, क्रॉ रिटर्न जस्ट इन टाइम एंड ही सून डिस्कवर्ड मैनी मोर प्रीशियस स्टोन्स, और कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि रूबी फेल आउट ऑफ हिज पॉकेट। ओके, और ये रिटर्न है आपका लास्ट पैराग्राफ के 3rd सेंटेंस में बिल्कुल रिटर्न किया गया है। ओके, लास्ट पैराग्राफ के 3rd लाइन में बिल्कुल आपका दिया गया है, बताया गया है। ओके, तो 3rd सेंटेंस में जब आप जाते हो 3rd सेंटेंस में ये बिल्कुल रिटर्न है और इस तरह से आपने क्लियर समझ गया कि इसके साथ क्या हुआ था। ओके, नाउ B is correct. The ruby fell out of his pocket. Now this question for you: how did the crow get its black color? आज हम सब जानते हैं क्रॉ का कलर जो है ब्लैक है। इसमें बताया गया था कि वह हमेशा क्रॉ कलर में ब्लैक ही क्यों रह गया। एंड देयर आर 5 ऑप्शंस और इस 5 ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है और ये आपको जानना है कि वो क्रॉ ब्लैक ही क्यों रह गया। एंड करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द क्रॉ वाज बर्न्ड ब्लैक बाय द स्कॉचिंग गेज ऑफ द इंग्लिश सन। मैंने बताया भी था जब आपने रीड किया था, तब इसमें ये भी बताया गया था कि सेकेंड पैरा के लास्ट में दिया गया है कि 5th नंबर सेंटेंस में कि आखिर वो सन की हीट में किस तरह से जल गया, राइट, और वो बर्न्ट होकर ब्लैक हो गया। तो बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। इतना ही नहीं, आप जब ओलंपियाड, एनटीएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हो उस समय भी आपका बहुत हेल्पफुल है। आपका एकेडमिक जब आप 9, 10, 11, 12 जो आगे क्लास रहती है उसमें जो पैसेज पूछा जाता है ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन फॉर यू: व्हाट कुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी? इस स्टोरी का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? टाइटल बहुत सारे हो सकता है, आप अपने मन से बनाइए, सेम ऐसा ना कि वही टाइटल हो जाए। और ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है आपके हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है ज्यादातर। ओके, केयरलेस, ब्लैक क्रॉ, म्यांमार एंड इट्स रिच मिनरल, सन एंड प्रिंसेस, डिप्रेस्ड प्रिंसेस, सन एंड लॉस्ट रूबी। इस तरह से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आप अपने मन से सोच सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो, इसी में से हो, ठीक है, प्रॉपर जहां तक हो वहां तक कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया कि सी नंबर द सन एंड द प्रिंसेस, क्योंकि 2 कैरेक्टर के बारे में, एक प्रिंसेस है और एक सन के बारे में बताया। यू कैन से दैट द ऑप्शन दैट द सन एंड प्रिंसेस आर नॉट सुटेबल एज द टाइटल फॉर द पैसेज, द सन एंड प्रिंसेस देयरफॉर द मोस्ट सुटेबल टाइटल। ओके, तो इस तरह से बोला गया कि कोई ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एलिमिनेशन टेक्निक जो बताया गया इस पर एक सन है और प्रिंसेस है, उस स्टोरी को यहाँ पर डेवलप किया गया कि क्या हुआ क्या नहीं और क्या बताया गया, तो ये नाम देना ज्यादा उचित होगा। आप नाम थोड़ा बदल भी सकते हैं, बोलोगे द प्रिंसेस एंड द सन दे दे, क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लेकिन सन को पहले रखूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में सन का ही नाम पहले दिया गया सेंटेंस में। ओके, तो इस तरह से आप टाइटल का नाम ये सुटेबल दे सकते हो। दैट मीन्स सी नंबर इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन फॉर यू: व्हाट मैसेज डिड द प्रिंसेस गेट आफ्टर ओपनिंग द बैग? जब उन्होंने बैग को ओपन किया तो उनको क्या मैसेज मिला? देयर आर 5 ऑप्शंस ऑन द स्क्रीन, आप बिल्कुल 5 ऑप्शन देख रहे हो। दैट द सन ट्रूली लव्ड हर, दैट द क्रो वाज एविल बर्ड, एंड दैट द क्रो वाज प्लेइंग अ जोक, दैट सन डिड नॉट लव, दैट द कॉ डंग वाज टोकन ऑफ द सन्स लव फॉर हर। इस तरह से जो 5 ऑप्शन है, इससे करेक्ट ऑप्शन आपका डी नंबर है, क्योंकि दैट इज द सन डिड नॉट लव हर एनी मोर। ओके, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन एंड यू कैन सर्च थ्रू द पैसेज ऑल्सो। लास्ट पैराग्राफ 8th सेंटेंस में आप देखिए बिल्कुल रिटन ये बताया गया है, राइट। नो,
दिस क्वेश्चन फॉर यू, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। टोकन, टोकन का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर मीनिंग आपको, यानी वर्ड मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है। और इसका जो सिंबल है इंश्योरेंस है, स्लिप है, एश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए, सिंबल दे दिया, यानी उन्हें कुछ ऐसा दिया था जिससे वो आइडेंटिफाई कर ले। तो यू कैन से कि सिंबल उन्हें दिया गया था ताकि वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि वो क्या लेकर आया, किसका क्या सामान लेकर आया है, ऐसा कह सकते हैं, राइट। देन यू कैन से मोस्ट सिमिलर ऑफ टोकन इज सिंबल, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन फॉर यू, चूज द वर्ड दैट इज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑस्पिशियस। आप लोग में बहुत से मीनिंग जानते भी होंगे, डायरेक्टली जाते हो, रिलीजियस, लकी, फुलफिलिंग, चार्मिंग, नॉर्मल। इनके डायरेक्ट मीनिंग जो होती है ऑस्पिशियस, जो कि बहुत ही बड़े पर्व या लकी बोलते हैं। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द मोस्ट सिमिलर वर्ड टू ऑस्पिशियस इज लकी और प्रोपिटियस, प्रोपिशियस, ओके। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। फुलफिलिंग इतना बेहतर नहीं है, ऑस्पिशियस भी सेलिब्रेट करते हो, मोमेंट होता है, ऐसा वक्त में रिलीजियस भी नहीं होगा, फुलफिलिंग नहीं होगा, चार्मिंग भी नहीं होगा, नॉर्मल भी नहीं होगा, लकी सबसे सिमिलर, मोस्ट सिमिलर वर्ड है। Now this question for you, choose the word what is most opposite in the meaning discussing। आपका अपोजिट मीनिंग यहाँ पूछा जा रहा है, तो अपोजिट मीनिंग आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। कूल, हीटेड, वार्म, साइलेंट, कंपोज्ड। इसमें से किसी एक ही को आप सेलेक्ट करोगे और जो सेलेक्ट होगा वो है ए, कूल, स्कॉचिंग। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द स्कॉचिंग इज कूल और काम, ओके। और काम तो आपका है नहीं, तो कूल होगा, हिट नहीं हो सकता है, वार्म नहीं होगा, साइलेंट भी नहीं होगा, कंपोज भी नहीं होगा। कूल आपका परफेक्ट है, अपोजिट मीनिंग जो होगा उनका कूल होगा। होप इस तरह से आप जब पैसेज को रीड करते हो, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, आपका ज्यादा एमसीक्यू सही जाएगा, ओके। तो मैंने बस एक दिया आपके पास, किस तरह से आप फाइंड आउट कर लेते हो कितना इजीली। और प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका पैसेज कंप्रिहेंशन आपका करेक्ट होगा। वो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम हो, टेस्ट हो, या तो आप स्कूल कॉलेज का कोई एग्जाम देते हो और अब से जब पूछा जाता है। अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक भी कीजिए वीडियो को, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो आगे का वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए, तो मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक कोशिश बस किया जा रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, बिल्कुल मिलते रहेगा आगे भी। थैंक यू सो मच।